Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikram al-Haq, subject specialist, and you are watching my YouTube channel English with Ikram. My dear students, especially ETA students who are preparing for ETA and your time is too short, you have to work very hard. आपका maximum 20 to 30 days है, तो आपके लिए अब बड़ा tough time है. You have to work very hard, and you know that we have started ETA series. In my last video, I have discussed grammar-based MCQs, and those MCQs were based on verb and different parts of speech. In today's video, my 5 MCQ that I am going to discuss will be based on preposition. और ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि preposition in English grammar are very much tricky because there is no concept, there is no hard and fast rule. तो आपने पहले मेरी जो 3 वीडियोज़ हैं, preposition of time, preposition of place and preposition fixed with certain verbs, वो वीडियोज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वीडियो आपने मस्त देखनी है, just for the clarification of your concept, because you know that my focus has always been on concept. If your concept is not clear, just by practicing with different MCQs, that's useless. जब आपका concept नहीं है, सिर्फ की देख के MCQs अटैम्प्ट करना, राइट ऑप्शन लगाना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, चाहे टेंसेज हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, कंजंक्शन है, कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है. तो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड फॉर कॉन्सेप्ट यू हैव टू वॉच दोज वीडियोज़. वो सारी वीडियोस ऑलमोस्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ. आपने किसी भी प्रैक्टिस से पहले आपने वो वीडियोस मस्त देखनी है. इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, क्वेश्चन मे बी ऑफ एनी टाइप, there will be no issue for you. So let's get started. I will discuss just 5 MCQs. I have discussed 5 MCQs preposition based in my last video. आज सिर्फ 5 MCQs preposition based, लेकिन जहाँ कोई रूल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, I will discuss. Otherwise you have to just practice. Preposition is all about practice. कुछ ऐसी prepositions हैं जो फिक्स्ड हैं with certain verbs, तो वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. मैं उन तीनों वीडियोस, स्पेशली preposition of place, preposition of time और जनरल preposition, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दूंगा, वो मस्त देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. MCQ नंबर 1. It has been raining dash last night. And this MCQ was there in 2015 in the paper of ETA paper of medical. Medical के 2015 के पेपर में ये preposition, तो मैंने सारी preposition वहाँ से उठाई हैं जो पिछले last 5 years के पेपर्स में आ चुकी हैं. It has been raining. This is simple. I have discussed that. जब मैंने टेंसेस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, सेंस डिस्कस किया था, आपको बताया था कि there is very close connection between past, present perfect continuous and present continuous. और उसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? दोनों में सेंस यही है कि टाइम इज अकरिंग राइट नाउ, बट द डिफरेंस इज व्हेन देयर इज सम रेफरेंस टू द पास्ट. पास्ट का कोई रेफरेंस दिया हुआ है, देन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. आमतौर पे ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि हम आमतौर पे लिखते हैं कि वो 10 साल से यहाँ पढ़ा रहा है, तो ही इज़ टीचिंग. तो व्हेन एन एक्शन इज अकरिंग राइट नाउ at the moment, momentary action, but without any point of reference to the past. past का कोई reference नहीं है, उस सूरत में that is present continuous tense. और अगर past का कोई reference दिया हुआ, जैसे इस sentence में last night, काम अभी हो रहा है, the action is in progress right now, momentary action, action at the moment. But the difference is past का एक time दिया हुआ है, time started in the past, ये timeline है, time started over here, बट कंटिन्यू टिल प्रेजेंट. ये मैं बार बार ये चीज़ें मैं कर चुका हूँ, ये आपकी टाइम लाइन से वाकफ़ है. व्हेन यू रीच ओवर हियर द टाइम इज स्टिल इन प्रोग्रेस, बट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ द पास्ट हैज़ बीन गिवन. इस सूरत में दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. लेकिन अभी कोई काम यहाँ पे हो रहा है, द टाइम एक्शन इज इन प्रोग्रेस ओवर हियर, बट देयर इजंट एनी टाइम ऑफ रेफरेंस, देन दैट इज मोमेंटरी एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इफ यू लुक एट द सेंस ऑफ दिस टेंस, इट हैज़ बीन रनिंग, तो यहाँ पे लास्ट नाइट है, तो इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है. ये मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि वेयर डू वी यूज़ सिंस एंड वेयर डू वी यूज़ फॉर. व्हेन देयर इज पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम इज मेंशन्ड, देयर इज पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट आवर, देन वी यूज़ सिंस. If there is just a duration of time, we use for. So here there is last night, exact time is given, so here the right option is since. It has been raining since last night. So this was the concept behind this MCQ. Maybe your concept is clear, but ये मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि concept is important. सिर्फ प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं है, या की देख के राइट ऑप्शन रटे मारना ये इंपॉर्टेंट नहीं है.
You have to be focused about your concept. Number 2, he was arrested and charged dash murder. अब यहाँ पे कोई concept नहीं है. This is all about practice. There are certain verbs with which certain preposition are fixed. कुछ ऐसे verbs हैं जो अपने साथ कुछ खास preposition को allow करते हैं. अदरवाइज बाकी preposition लगाएंगे बजाय सेंस लगता है, सिमेंटिक्स बताते हैं कि सेंस ठीक है, लेकिन सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर वाइज हम उसको गलत कहेंगे. बिकॉज द नेटिव स्पीकर हु आर द स्टैंडर्ड फॉर अस, दे यूज हियर विथ preposition. दिस इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जब जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो हमारे दिमाग में रहती है. ही वॉज अरेस्टेड एंड चार्ज ऑफ मर्डर, विद मर्डर और फॉर मर्डर. Now with the verb charge we always use the preposition with. अब ये आपको कभी नहीं भूलेगी. आप खुद मतलब स्टडी करते हैं वो चीज़ भूल जाती है, लेकिन जो चीज़ आपको बताई जाती है, आपको डिस्कस करवाई जाती है, जब आपके सामने अल्लाह करे ये preposition आएगी तो आपके दिमाग में मेरी ये आवाज़ टकराएगी कि सर ने वहाँ उस दिन ये डिस्कस किया था कि चार्ज के साथ we use the preposition with. तो here the right option would be he was arrested and charged with murder. We always use preposition with the verb charge. Charge allows only with its as a preposition. Okay, the next MCQ is the senator is opposed dash this new legislation. This MCQ was there in the ETA paper of 2014 medical के पेपर में ये आ चुकी है. Now the verb is opposed. Again there is practice. You have to practice yourself, and there is one preposition that this verb allows with it. The senator is opposed at, opposed to, opposed with, opposed of. We always use preposition to with the verb opposed. Here it would be the senator is opposed to this new legislation. If you look at this preposition opposed with, मतलब बंदा कहता है ये भी तो ठीक लग रही है. इफ़ यू जस्ट ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, आप अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि मतलब तो इसका भी यही बनता है. लेकिन देर आर सर्टेन preposition विच आर फिक्स्ड. बेशक जहन नहीं मानता, कॉमन सेंस कहता है यार ये इसमें सूट नहीं करती, बट वी हैव टू जस्ट कॉपी द नेटिव स्पीकर्स. दे आर स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर अस. वो यूज़ करते हैं विद तो हम भी कॉपी करेंगे. It's all about practice. हमने प्रैक्टिस करनी है, बट जस्ट कॉपी करना है. The senator is opposed to this new legislation. उसके मुखालिफ है. The next one, the police is looking dash the recent state of burglaries. Burglaries कहते हैं वो लोग जो ज़बरदस्ती कहीं घुस जाते हैं. तो they are looking into, looking to, looking for, looking at the state of burglaries. तो यहाँ पे look into, look for, both are very much close to each other, but both the word phrases have different meanings. इन phrases का मतलब different है. For example, when we say look into means किसी चीज़ को बगौर देखना, उसका मुताला करना, जायज़ा लेना, डिस्कवर करना, इन्वेस्टिगेट करना, और look for का मतलब तलाश करना, सर्च करना. तो अभी कॉमन सेंस की बात है, तो इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन से मोर सुटेबल है. तो जाहिर सी बात है, हियर द पुलिस इज लुकिंग इनटू द रीसेंट स्टेट ऑफ बर्गलरीज. उनके मामलात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, रिसर्च का डिस्कवर कर रही है, देखभाल रही है, ट्रेस आउट कर रही है. यहाँ पे लुक फॉर सूट नहीं करता. लुक टू, लुक एट, बोथ आर टोटली वी से ऑकवर्ड. द लास्ट MCQ इज प्लीज कम टू द पॉइंट, डोंट बीट द बुश. देयर इज एन ईडियम. यहाँ पे इसमें एक ईडियम यूज़ हुआ है, बीट डैश द बुश. फिक्स्ड ईडियम है जिसका मतलब होता है कि इधर उधर की बातें ना करो, आप पॉइंट पे आओ, फजूल बातें ना करो, इधर उधर की बातें ना करो. तो उसके लिए एक ख़ास ईडियम है, दैट इज़ बीट अबाउट द बुश. डोंट प्लीज़ कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश. इधर उधर की हांको, इधर उधर की बातें ना करो, पॉइंट की बात करो, मतलब की बात करो, फजूल बातें ना करो. तो उसके लिए ये ईडियम है beat about the bush. So here it would be please come to the point, don't beat about the bush. Here are just 5 MCQs based on preposition. I will discuss preposition on almost on daily basis on alternative days. और दूसरे दिन, क्योंकि preposition is all about practice. Preposition में rule, hard and fast rule बहुत कम यूज़ होते हैं.
ज़्यादातर इसमें प्रैक्टिस है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी 3 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, वहाँ पे रूल्स हैं और कुछ फिक्स प्रेपोजिशन भी मैंने डिस्कस की है। इसके अलावा आप जहाँ से भी मर्जी प्रैक्टिस करें, आप सिर्फ स्टडी करें और इस तरह जब हम डिस्कस करते हैं तो डिस्कशन से चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब आपके सामने ईटा में ज़रा 2-3 MCQs मस्ट होते हैं किसी भी ईटा, NTS, MTCAT, MCAT, NUST, LUMS, किसी भी टेस्ट में। और प्रेपोजिशन ऐसी चीज़ है कि आप चाहे यूनिवर्सिटी में BS के एडमिशन में, अब यूनिवर्सिटी ने में UGET स्टार्ट कर लिया है, BS के एडमिशन के लिए इंग्लिश का टेस्ट होगा, या ISSB के टेस्ट होते हैं, आर्मी के टेस्ट होते हैं, किसी पोस्ट के लिए NTS के टेस्ट होते हैं। प्रेपोजिशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। 2-4 MCQs प्रेपोजिशन के मस्ट हर टेस्ट में होते हैं। तो प्रेपोजिशन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बहुत ट्रिकी ये एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर है, लेकिन उसका हल क्या है, वे आउट क्या है, जस्ट प्रैक्टिस। तो इसके लिए आप वीडियोस देखें, बार बार देखें, प्रैक्टिस के लिए देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक किया करें। इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट, आस्क क्वेश्चन। आई हैव टोल्ड यू so many times earlier that asking question is very much important. If you have any query, any ambiguity, ask question right in the comment box of my video. I will definitely answer to your question. Thank you very much. That's all for today.